Hello everyone, welcome back to the session. In the previous session, we have done how to add video effects to our particular video and enhance the visuals, right? So now today we are going to start with something new, that is the audio layer. So as you all know that audio is the backbone of your particular video. If there is no audio, or if the audio has not been placed, or no right audio is not selected for your particular video, then it can really ruin your whole project. And to add a great impact on your particular shot or scene, you need to have a good audio also. So basically, let's discuss that what are the different kind of audio types which we work here for editing purpose. So whenever you're going to start with editing, there are different kind of projects you work for, right? There could be a project where all you have to do is you have to deal with just a single track or a song or a background music, right? So in that particular case, there are not much major adjustments which are required for your particular audio. All you can do is you can match the video and sync it properly with the audio. So that is very basic technique, but still it requires a lot of skills to match the beat of a particular audio, right? So now let's discuss that what are other voices, what are other kind of sounds which we add into a particular project, right? Let's suppose that you are working or you are dealing with a project in which there are some kind of dialogues being involved, like आपने movies वगैरह में देखे होंगे कि अगर आप behind the scenes देखोगे किसी भी मूवी के, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि एक्टर्स के पास काफ़ी बड़े बड़े बूम माइक्स रखे होते हैं, राइट? जो साउंड डिज़ाइनर वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, तो उन्होंने बड़े बड़े बूम माइक कैरी किए होते हैं अपने आर्टिस्ट के पास, सो दैट कि जो माइक है वो फ्रेम के अंदर भी ना आए आपके, प्लस वो जितना हो सके उतना ऑडियो जो है वो कैप्चर कर सके for better dialogue, for more clarity in the voice. But still, if they are not able to do that in during the shoot, they can somehow refine it in the post also. So if you are working with dialogues, you have to make sure कि जो भी आप अपने वॉइस ओवर वगैरह करवा रहे हो या फिर आप अपने सिंपल कोई पॉडकास्ट है, उसमें ऑलवेज चेक दैट जो आपके वॉइस की क्लैरिटी है क्या वो ठीक है, क्या वॉइस के जो लेवल्स हैं क्या वो एक्यूरेट हैं, राइट? Then we are having certain kind of sound effects. Let's suppose, no doubt you are working with a project in which there is a single track. So in that particular thing also, to create more impact in your video, जैसे हमने अभी रिसेंटली लास्ट वीडियो में कुछ इफेक्ट्स क्रिएट किए थे, अब वो इफेक्ट्स नो डाउट विजुअली तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बट देयर वाज नो ऑडियो बिहाइंड दैट पर्टिकुलर विजुअल्स, राइट? सो अगर उसी विजुअल्स पे मैं कुछ ऑडियो इफेक्ट्स ऐड ऑन कर देता, जैसे हमने लाइटिंग इफेक्ट किया था जिस पे हमने प्रॉपरली जो एक स्ट्रोक है वो क्रिएट की थी लाइटिंग इफेक्ट की, अगर उसी में अगर मैं थोड़ा इलेक्ट्रीफाइंग सा कुछ साउंड इफेक्ट ऐड कर देता तो शायद वो मेरे विजुअल्स को, आई वोंट से इट वुड डबल इट, बट मे बी शायद वो उसका इम्पैक्ट 10 टाइम्स और ज़्यादा क्रिएट कर देता। बिकॉज विदाउट ऑडियो आप जितने भी इफेक्ट्स लगा लो वीडियो पे, दे वोंट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट until or unless there is an audio behind it. बिकॉज आप जब किसी विजुअल्स को देखते हो तो उसके साथ साथ जब आप उसको सुनते हो आप और ज़्यादा उसके साथ रिलेट कर पाते हो, आप और ज़्यादा उसके डेप्थ में जाते हो. That's why audio is actually the backbone of your particular project. Without audio or a proper audio, you cannot have a good project, right? Then
साउंड इफेक्ट्स भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं. देन वी हैव एम्बियंट साउंड, दैट इज द एम्बियंस ऑफ योर पर्टिकुलर एरिया, राइट. अब कोई भी एम्बियंट साउंड हमें सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकती है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम प्लेस्ड इन अ मार्केट, मेरा कोई ऐसा शॉट है जहाँ पे जो मेरा आर्टिस्ट है वो मार्केट में खड़ा है, राइट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर ऑडियो कैप्चर नहीं भी हो रही तो मैं ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स जिसमें नॉइज़ हो, बैकग्राउंड की नॉइज़ हो, व्हीकल्स की नॉइज़ हो, व्हीकल के हॉर्न की, लोगों के बात करते की, राइट. सो उन सभी ऑडियोज़ को अगर मैं कंबाइन करूँ तो वहाँ से मैं अपने जो एक एम्बियंस है वो क्रिएट कर सकता हूँ, राइट. सो let's see how we can add audio into our timeline. So यहाँ पे मैं again अपने ऑडियो क्लिप्स को ऐड करता हूँ, कंट्रोल आई, देन लेट्स चूज दी ऑडियो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वॉइस ओवर ऐड ऑन कर रहा हूँ. यू माइट हैव हर्ड दिस पर्टिकुलर वॉइस ओवर बिफोर. सो make sure कि whenever you are going to import the audio, it is going to be placed in this particular section, that is in your audio section. अगर आप देख सकते हो हमारा जो टाइमलाइन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज फॉर द वीडियो while the other one is for the audio only. So make sure अगर आप यहाँ से ऑडियो क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो बट स्टिल वो वहाँ पे प्लेस नहीं हो रही, सो इसका मतलब है कि आप अपनी जो ऑडियो क्लिप हो वो वीडियो लेयर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो. दैट्स वाई आपको अपने टाइमलाइन में कोई भी आउटपुट या कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, राइट. सो आप यहाँ से अपने क्लिप को कोशिश करो कि ऑडियो लेयर के ऊपर ही अप्लाई हो, राइट. जैसे हम यहाँ पे इसको लेके आते हैं ऑडियो लेयर के ऊपर. अब जैसे मैं ऑडियो लेयर के ऊपर लेके आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी जो क्लिप है वो पेस्ट हो चुकी है, राइट. यहाँ पे अब सो इसका एक बार हम प्लेबैक लेते हैं. Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. राइट. तो Every यहाँ पे frame tells a story. Design it, move it, make it real. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक वॉइस ओवर एडेड है. सो इस पर्टिकुलर वॉइस ओवर को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वैसे नो डाउट वट एवर द पर्सन हैज सेड इन दिस पर्टिकुलर डायलॉग, राइट, या वॉइस ओवर, काफ़ी अच्छा इन्होंने डायलॉग बोला है, बट स्टिल उसमें और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक न्यू लेयर लेके आ सकते हैं कोई भी ऑडियो की, राइट. कोई भी इंस्पिरेशनल म्यूज़िक, कोई मोटिवेटिंग म्यूज़िक जो मेरे इस पर्टिकुलर डायलॉग को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाए by simply enhancing the audio clip by adding some music or adding a tone for this particular video. So let's suppose कि यहाँ पे मैं एक न्यू ऑडियो लेयर ऐड करता हूँ. आप यहाँ पे इसको क्लिक करके इसको ड्रैग करके अपने लेयर्स को भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म दिख जाएगी. तो वेव फॉर्म से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपका जो क्लिप है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से नहीं. तो एक बार प्ले करते हैं. Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. Every frame. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरे ये वाली सेकंड ऑडियो लेयर है ये इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर सकता हूँ, जैसे कंट्रोल के करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं. कोई भी लेयर को आप म्यूट करना चाहो तो आप यहाँ से एम के ऊपर क्लिक करके अपने ट्रैक को म्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको म्यूट कर देता हूँ तो अभी जो मेरे वॉइस ओवर है वो नहीं सुनाई देगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर ट्रैक के जो ऑडियो है वो सुनेंगे, राइट. और वहीं पे वॉइस वर्सा अगर इसको म्यूट कर देता हूँ और इसको ऑन रखता हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर सुनेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुनेगा यहाँ पे. Every frame tells a story. Design it, move it. राइट. सो इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं. अगेन इसका एक प्लेबैक लेते हैं.
Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. राइट। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ ऑडियो बार दिख रहा होगा, राइट। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ स्टार्टिंग में, Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. अगर आप अपने इस ऑडियो बार को चेक करेंगे प्रॉपरली तो ये ग्रीन कलर से होते होते टॉप में जाता है, देन इन बिटवीन येलो के बीच में शिफ्ट होता है और लास्ट में रेड, राइट। सो ये आपके ऑडियो की जो पिच है, जो उसके लेवल है, उसको बता रहा है कि अभी आपके जो ऑडियो के लेवल्स हैं कितने हाई हैं कितने लो हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा लो हैं, यहाँ तक ही अपनी जो हाइट को है वो पुश कर पा रहे हैं, सो इन दैट पर्टिकुलर केस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आपकी जो क्लिप है, राइट, ऑडियो की जो क्लिप्स हैं उसके ऑडियो के लेवल्स काफ़ी कम हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करके उसके लेवल्स आप अप डाउन कर सकते हो, सो दैट कि उसको आप प्रॉपरली सुन सको। अगर आपका डायलॉग क्लियर नहीं है या उसमें उसकी वॉइस कम है तो आप यहाँ पे कुछ मैनुअल एडजस्टमेंट करके अपने जो डायलॉग हैं उसको आप ऐड ऑन करवा सकते हो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लेबैक करूँ, Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं अपने वॉइस ओवर प्लस अपने जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको जब मैं प्ले कर रहा हूँ, सो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या इशू फेस करना पड़ रहा है कि मेरा जो म्यूजिक है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा लाउड है कि जो मेरा पर्टिकुलर डायलॉग है, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू माई डायलॉग दैट व्हाट हैज़ बीन स्पोकन अप इन दैट पर्टिकुलर वॉइस ओवर, राइट। सो उसको कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने जो ऑडियो ले रहे हैं उसके थोड़े बहुत जो ऑडियो लेवल्स हैं वो कम कर सकते हैं। अगेन इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल में अगर आप जाओगे, देन यहाँ पे आपके पास चैनल वॉल्यूम है, पैनल ऑप्शन। अब यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो करेंटली आपके पास ऑडियो के ही इफेक्ट्स शो होंगे। जैसे हम पहले वीडियो अगर कोई सिलेक्ट होती मेरे यहाँ पे तो उस केस में क्या होता है कि वीडियो के जो ऑप्शंस होते हैं सिर्फ वही शो केस होते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि मुझे ऑडियो के ही शो होंगे बिकॉज हम अभी किस पे वर्क करें, ऑडियो पे। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेवल्स का ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। अब लेवल्स को जितना कम ज़्यादा करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ और एक बार ऑडियो के लेवल्स चेक करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ऑडियो के लेवल्स शो हो जाएंगे। सो आप देख सकते हो कि ये जो ऑडियो क्लिप है वो रेड तक इन बिटवीन टच हो रहा है, विच मीन्स कि जो मेरा म्यूज़िक है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है। सो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, लेयर को सिलेक्ट करके ऑडियो लेवल थोड़े बहुत कम कर सकता हूँ। अगेन इसमें भी कोई भी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको स्टॉप वॉच का आइकन दिख रहा है, विच मीन्स कि आप उसको एनिमेट कर सकते हो। सेम यहाँ पे हम जैसे ट्रांजिशन हमने क्रिएट की थी, फेड इन फेड आउट, सेम वैसे की ट्रांजिशन हम ऑडियो पे भी क्रिएट कर सकते हैं कि स्लोली ऑडियो फेड होते 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 वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल ऑडियो लेवल के ऊपर आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -10 है, -12 तक लेके जाता हूँ और एक बार प्ले बैक करते हैं। राइट, तो अभी आप देख सकते हो कि जो मेरे लेवल थे वो यहाँ तक टच कर रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा और कम कर सकता हूँ सो दैट कि मेरा जो फोकस रहे वो मेरे वॉइस ओवर के ऊपर रहे और जो मेरा ऑडियो क्लिप है या फिर जो म्यूज़िक है वो सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिंग बैकग्राउंड की तरह उसको एक्ट करे। Okay, so now after adding this, what we can do is we can hear about the final output. Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. Now you can hear very properly that यहाँ पे क्या है कि मेरे जो वॉइस ओवर है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। कंपैरेटिवली पहले मेरा म्यूज़िक इतना लाउड था कि मुझे अपना वॉइस ओवर जो है वो इतना सुन नहीं रहा था, बट अभी क्या हो गया कि वॉइस ओवर तो बहुत क्लियर है बट म्यूज़िक थोड़ा सा हमें डाउन हो गया, तो हम अपने वॉल्यूम लेवल्स को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ, राइट।
Every frame tells a story. Design it, move it, make it real. राइट। सो अब आप यहाँ पे इसको सुन सकते हैं। अभी जो मेरा म्यूजिक का लेवल है प्लस जो मेरे वॉइस ओवर का लेवल है ऑडियो का, दे आर ऑलमोस्ट सेम। राइट, सेम इन द सेंस मतलब सेम ऑडियो लेवल पे नहीं, बट सेम आई वुड से कि अपने अपने टोन को बहुत ही ज़्यादा वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बिकॉज मुझे मेरा वॉइस ओवर बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा हूँ मैं, अलॉन्ग विद दी म्यूज़िक जो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही एज अ सपोर्टिंग ही वहाँ पे प्ले करे। मेन जो हाईलाइट होना चाहिए वो मेरा वॉइस ओवर ही होना चाहिए। सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन चूज दैट अगेन। जैसे यहाँ पे मेरे पास शो क्लिप की फ्रेम्स अगर मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम मेरे पास वॉल्यूम के लिए है, लेवल्स के लिए बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अगेन यहाँ पे पेन टूल के थ्रू मैं की फ्रेम्स ऐड करके अपने कोई भी फेड इन फेड आउट इफेक्ट है, जैसे यहाँ पे फेड आउट इफेक्ट अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो कुछ इस वे में क्रिएट कर सकता हूँ। तो एक बार यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है। इसको वॉइस ओवर को भी फॉर द टाइमिंग म्यूट कर लेते हैं सो दैट कि मेरा फोकस, बिकॉज अभी क्या किया है हमने ऑडियो के जो लेवल्स हैं उसको ऑलरेडी थोड़ा हमने कम किया है। दैट्स वाई फॉर मोर क्लैरिटी हम क्या करेंगे अभी जो वॉइस ओवर है उसकी ऑडियो को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देते हैं और सिर्फ अपने जो म्यूज़िक ट्रैक है उसको सुनते हैं। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फेड आउट इफेक्ट क्रिएट किया है। तो अगर इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर दूँ तो अगेन ये और ज़्यादा स्मूथ हो सकता है। राइट, सो जैसे हमने कुछ ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज़ किए थे अपने वीडियो के लिए, सेम वैसे ही हमारे पास कुछ यहाँ पे ऑडियो के लिए भी रहते हैं। तो आप उसके थ्रू अपने जो भी ऑडियो में ट्रांजिशन है, जैसे एक ऑडियो से दूसरी ऑडियो के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कुछ ट्रांजिशन ऐड ऑन कर सकते हैं। along with that we are having certain properties for audio clips also to modify them, to adjust them according to your own requirement, right? So this was all about some basic layering of your particular audio clips, how you can adjust the volume. Then we have the balance option also. For example अगर आप वॉल्यूम पे जाएंगे यहाँ पे लेवल्स का है, देन वी हैव पैनर है। पैनिंग में क्या होता है कि आप ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट चैनल है, विच मीन जैसे अगर लेट्स सपोज वी आर वर्किंग विद हेडफोन्स ऑन तो यहाँ पे आप अपने ऑडियो लेवल्स को शिफ्ट कर सकते हैं टू द लेफ्ट साइड और टू द राइट साइड। मतलब प्रॉपर जैसे पैन इफेक्ट हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप क्रिएट कर सकते हैं। Hope so it was clear to you in this particular session. For audio we are keeping it very basic only, because in the next session we are going to discuss in more detail, in more depth about what is audio, साउंड डिज़ाइनिंग क्या होती है, किस टाइप के साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सारे हम यहाँ पे करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।